Hello, everyone. Welcome to the Corporate and International Tax Masterclass. First of all, I want to say congratulations and kudos to you. आपने अपनी upskilling journey में एक अपनी professional journey में एक ठीक direction में एक step लिया है. Being on the other side of the interview, having had conducted a lot of interviews for articles and fresher CAs, I myself expect candidates nowadays to not only have the theoretical knowledge that they've done, given in their IPCC and their CA final exams, but rather some level of practical exposure as well, some level of understanding that what will their jobs in this field, the field of corporate and international tax entail. ऐसा नहीं है कि किसी को बस theoretical knowledge है कि हमने CA final में ऐसा ऐसा पढ़ा था, उसमें क्या क्या होता था, हमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग आए थे, हमारे तो 80 मार्क्स आए थे, तो हम अब इस फील्ड में वी विल एक्सेल. It does not work like that, right? There are a lot of skills, a lot of practical understanding of the subject and the entire landscape of corporate tax that you must know to have a head start in this field, right? मैम हम इस कोर्स में करने क्या वाले हैं? In this course, what you can expect is a practical hands-on training in corporate and international taxation field. आपने जो भी theoretical knowledge अपने IPCC level या CA final level पे attain की है, जो भी theoretical knowledge आपने पढ़ाई करके attain की है, we will learn how to apply that practically. We will learn how to apply all of this knowledge in real life scenarios, right? This will give you an edge along with your peers, your co-workers to have a head start in the journey. आजकल सिर्फ theoretical knowledge से employers do not get impressed. I can tell you because I am mostly on the other side of the table when I am conducting interviews, right? We know not a lot of people get great level of practical exposure in this field, in the field of corporate and international tax, up to their articleship levels, right? Up to their articleship experience. That is why we wanted to bring this course to you, which we believe would be a huge value addition to you. Whether you're starting a new job as a qualified chartered accountant, whether you're preparing for interviews right now, whether you want to apply for articleships in the field of corporate and international taxation, I think you've come to the right course. Hi, I'm Samiha Mehta. I've been working in the field of corporate and international taxation since about 5 years now. I have been working with India's top firms, including one of the big fours. I did my articleship from one of the top firms in statutory audit. बट आई फील जैसे जैसे मैंने सीए फाइनल में पढ़ाई की, जब मैंने टैक्स डिटेल में पढ़ा, आई थॉट द टैक्स वुड बी अ बेटर फिट फॉर मी, मोर suitable for me. And that's when I started, I made a career switch from audit to taxation. And I hope taxation turns out to be just as fulfilling for you as it has been for me. I am very sure this course, the completion of this course, will leave an itch or an inclination in you to dive head on into the field of corporate and international tax. All the best. Let's start. अच्छा, एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देते हैं. इन सेशंस में टैक्स पढ़ाया नहीं जाएगा. हम टैक्स पढ़ना नहीं सीखेंगे. वी वुड अप्लाई वॉट एवर हमने टैक्स में पढ़ा है, हम उसको रियल लाइफ सिनेरियोज में अप्लाई करना सीखेंगे. ठीक है मैम, अग्रीड. हम बेसिक लेवल ऑफ रीडिंग करके रखेंगे. जब भी आप कोई भी सेक्शन की, कोई भी प्रोविजन की बातें कर रहे हो, हम सारे सेक्शंस पढ़ के रखेंगे पहले से ही. एब्सोल्युटली. मैम, आप बड़ी देर से बोल रहे हो कि कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स का करियर बहुत फुलफिलिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को है, बहुत कुछ है सीखने को, बहुत डाइवर्स है. बट इज इट इवन वर्थ इट? हमने तो सबको देखा है, जनरली लोग ऑडिट करते हैं. ऑडिट में लोगों के पास एक होलसम एक्सपीरियंस रहता है. लोगों के पास क्वालिफाई करने के बाद या बाद में भी ऑप्शंस बहुत रहते हैं. लोग इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, बिग फोर्स में चले जाते हैं, दूसरी टॉप फर्म्स में चले जाते हैं. टैक्स में मैम करियर रिवॉर्डिंग भी है. ठीक है, लेट्स लुक एट अ सैम्पल करियर ट्रेजेक्टरी, an average career trajectory in one of the big fours in the field of corporate and international tax. हाँ जी, करियर ट्रेजेक्टरी देखते हैं बिग फोर्स में. व्हाट डज इट यूजुअली लुक लाइक फॉर सीआईटी? सीआईटी बोले तो प्यार से कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन को हम सीआईटी बुलाएंगे. ठीक है मैम. अच्छा,
Let's assume that you start your journey with a Big Four in with your articleship itself, right? आप articleship के starting से ही आप एक Big Four में corporate and international taxation में आप join कर लेते हो, ठीक है? सबसे पहले आप आर्टिकल रहते हो, 3 साल की आपको आर्टिकलशिप करनी होती है, ठीक है मैम। उसके बाद भगवान ना करे आपको एक से ज्यादा अटेम्प्ट लगे, बट इफ फॉर एग्जाम्पल योर आर्टिकलशिप गेट्स ओवर, बट you for example you still want to work with the firm that you're working with, they will hire you as a specialist or a paid assistant depending upon whichever firm you're working with. These are basically semi-qualified or unqualified people who are one step away from being a qualified chartered accountant. ठीक है मैम। स्पेशलिस्ट आप सबसे पहले इंटर्न बने, फिर आप स्पेशलिस्ट बने, उसके बाद आप एक एसोसिएट बनते हो। एसोसिएट पहला स्टेप है एक क्वालिफाइड सीए के लिए। वी आर बेसिकली सीइंग कैसे कैसे आप एक बिग फोर की हायरार्की में ऊपर बढ़ते हो ओवर द इयर्स, राइट? वी आर सीइंग द करियर प्रोग्रेशन इन सीआईटी। इंटर्न बने आप, फिर आप स्पेशलिस्ट बने, फिर आप एसोसिएट बने। डोंट वरी अगर आपने आर्टिकलशिप किसी बिग फोर या किसी टॉप फर्म से नहीं की है, इट डज नॉट मीन दैट आफ्टर क्वालिफिकेशन यू विल नॉट गेट इन। Absolutely not. If you have the right technical skills, if you have the right communication skills, if you have the right practical exposure, what we are learning here today, all of this will give you a big push towards your employment journey with the Big Four. ठीक है मैम। एसोसिएट्स मैम, इसके बाद क्या होता है? एसोसिएट के बाद क्या बनते हैं? अप्रोक्सीमेटली एसोसिएट्स के बाद 2 या 3 साल अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 2 इयर्स में आप प्रमोट हो सकते हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो यूजुअली, या अच्छी नहीं है तो आपको रीथिंक करना चाहिए, बट इफ यू हैव सम लेवल ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस, आप 3 इयर्स में बन सकते हो। क्या बन सकते हो? सीनियर एसोसिएट या फिर असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है मैम। अप्रोक्सीमेटली +3 इयर्स, 3 इयर्स आपने एएम की लेवल पे असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन पे काम किया, देन यू कैन ग्रो इन द सिस्टम टू बिकम अ मैनेजर। 3-4 साल आपने मैनेजर बन के एकदम क्लाइंट्स का पूरा अकाउंट संभाला, विच शोज दैट यू नो यू कैन हैंडल अ टीम ऑन योर ओन। दैट इज व्हेन यू कैन ग्रो इन द सिस्टम टू बिकम अ सीनियर मैनेजर और एन एसोसिएट डायरेक्टर। अच्छा मैम, आपने स्लैश करके क्या लिखा हुआ है? कुछ बिग फोर्स में दोनों टर्म्स यूज होते हैं, राइट? सो इट डजंट मीन दैट वन इज बेटर देन द अदर। यूजुअली आई हैव ट्राइड टू पुट कंपेरेबल टर्म्स एट द सेम लेवल। ठीक है मैम। सीनियर मैनेजर डायरेक्टर बनके अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 इयर्स में आप डायरेक्टर बन सकते हैं, राइट? अच्छा, 3-4 साल सीनियर मैनेजर स्लैश एसोसिएट डायरेक्टर की तरह काम करके, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैनेज कॉम्प्लेक्स क्लाइंट्स, यू आर ट्राइंग टू मैनेज सम मैनेजर्स आल्सो, दैट इज व्हेन you you can become a director, right? Working as a director, when you start bringing in business, when you have a lot of connections with the clients, आपकी firm में establishment बहुत अच्छी है, if you're like doing good numbers, big revenue you're bringing in for the firm, in another 3-4 years you can become a partner. पार्टनर सबको पता है सीए फर्म में टॉप लेवल पे सबसे हम सबका बॉस पार्टनर होता है। पार्टनर में भी लेवल्स होते हैं, ऑफ कोर्स। एज यू ग्रो इन द सिस्टम यू बिकम अ सीनियर पार्टनर, यू बिकम वन ऑफ द टॉप मैनेजरियल पार्टनर्स एंड एवरीथिंग। दैट इज व्हेन यू गो इनटू अ डिफरेंट लीग इटसेल्फ, राइट? अभी हम सिर्फ एक एवरेज या जनरल ट्रेजेक्टरी बात कर रहे हैं, राइट? इसमें अगर आप कोई एकदम 30 मार खाओ, आपने फास्ट ट्रैक प्रमोशंस पे प्रमोशंस ले लिए, आप पार्टनर की स्टेप तक आप कम 12 to 15 इयर्स में आप पहुंच सकते हो। यू विल बी वन ऑफ द यंगेस्ट पार्टनर्स द फर्म्स एवर सी, राइट? ठीक है मैम। मैम, आप इतनी देर से पार्टनर पार्टनर कर रहे हो, ठीक है, बिग फोर की करियर ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी है, आप बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हो, पैसे भी तो बता दो। इज इट इवन रिवॉर्डिंग? ऑफ कोर्स मैम, सोना तो है, पैसे तो अच्छे देते ही हैं बिग फोर। कितना देते हैं? आप टैक्स में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप एक बार वो भी बता दो। ठीक है।
Everything is there on the screen, but let's take you through everything once. As an article or intern, what you can expect is anywhere between 1.8 to 3 lakhs per annum. अच्छा, ये सारी फिगर्स पर एनम है। मैम बोलने की जरूरत नहीं है, हम स्मार्ट है, हमें समझ आता है। ठीक है जी। As a specialist, a semi-qualified or a unqualified CA, you can expect anywhere between 3.6 to 4.8 lakhs. ठीक है मैम। एसोसिएट, आप एक फ्रेशर सीए की तरह आए हो, 9 to 11 lakhs depending upon your skills, depending upon whatever experience you've had, आपकी आर्टिकलशिप कहाँ से हुई थी, all of these factors you know will contribute towards what package you are offered at as a fresher CA. ठीक है मैम, एनीवेयर बिटवीन यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 9 to 11 lakhs. ठीक है जी। असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे यू कैन एक्सपेक्ट 15 to 17 lakhs इजी। ठीक है जी। मैनेजर बन जाते हैं मैम, तो मैनेजर में यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 18 to 25 lakhs. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। मैनेजर पोजीशन से आपके आपकी परफॉर्मेंस आपके नंबर्स से, वॉट एवर बिजनेस यू ब्रिंग इन टू द फर्म, उससे असेस होने लग जाती है, राइट? आप कितना रेवेन्यू ला रहे हो फर्म्स के लिए, उससे आपकी परफॉर्मेंस असेस होती है। अगर आप बहुत अच्छे नंबर्स ला रहे हो, बहुत अच्छा बिजनेस ला रहे हो फर्म के लिए, देन यू कैन इजिली एक्सपेक्ट सैलरी ऑन द हायर साइड, राइट? दिस इज मोर फॉर फ्रेशर्स, जो नए नए मैनेजर्स बनते हैं, जिनका रेवेन्यू नंबर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, फॉर दोस्त। ठीक है जी। सीनियर मैनेजर लेवल पे you can easily expect 28 to 40 lakhs. The same goes for senior managers and directors as well. It depends upon the nature of business that you're getting for the firm. It depends upon the value of business you're getting from the firm. It depends upon how much of a hold you have in the firm, how long have you been in the firm, are you a good leader in your team, all of these things. ठीक है जी। डायरेक्टर लेवल पे मैम, डायरेक्टर लेवल पे यू कैन अर्न इजीली एनीवेयर बिटवीन 50 to 95 lakhs, राइट? ठीक है जी। फाइनली फाइनली मैम, पार्टनर बनके कितना कमा सकते हैं? Anywhere between 1.5 to 3 crores you can easily earn as a partner. पार्टनर की रेम्यूनरेशन हर फर्म में, हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट होगी. They have some level of fixed components. Some of them have a mixture of fixed components depending upon, of course, the nature of business that they bring into the firm, the value of business that they bring into the firm. All of this ties into their direct compensation as well. ठीक है, तो अगर पार्टनर बहुत तगड़ा बिजनेस ला रहा है फर्म के लिए, दे कैन इजीली अर्न some percentage of profits that the firm makes, and this can go to the higher side of 2.5 crore to 3 crore, right? अच्छा, एंड ये बोलने की जरूरत नहीं है कि जैसे जैसे आप पार्टनर में सीनियोरिटी लैडर चढ़ते जाते हो, you go into the managerial positions of the firms and everything, so of course your compensation changes accordingly. ठीक है मैम, ये 3 कहीं से भी एंड नहीं है पार्टनर की सैलरी का. दिस इज बेसिकली फॉर, यू कैन से, लाइक न्यू पार्टनर्स. ये न्यू पार्टनर्स की सैलरी आप बोल सकते हो, राइट? As you grow more in the system, you can absolutely expect a very, very, very handsome amount of package that the firm will offer you. ठीक है मैम, इंटरेस्टिंग तो मैम काफी लग रहा है, काफी आपने हमें होप दे दी है that this career can be very rewarding. Absolutely. Only if you have the right technical skills and the real practical knowledge along with your theoretical knowledge, right? It is very, very important that you have the right skills that this industry requires. Aajkal, it's not the issue is on both sides of the spectrum, right? The employers are not able to find good candidates, the candidates that they would think would fit their role. They don't find the necessary skills from those candidates that they think will fulfill the role, right? And the same goes for the other side. Employees को लगता है, articles को लगता है कि it's so tough to get a job, right? So there's clearly a mismatch between the two ends of the spectrum. And I absolutely believe that this gap should be abridged, right?
मैम आपने हमें सैलरीज तो बहुत बढ़िया बढ़िया बता दी, आपने हमारी होप्स तो बहुत हाई कर दी हैं। अब हमें प्लीज ये भी बता दो, व्हाट शुड वी डू राइट टू गेट दीज जॉब्स इन द बिग फोर्स, द टॉप firms of the country, to get these sort of rewarding careers, right? First and foremost, no doubt about it, you need to be very, very strong with your technical skills. टेक्निकल स्किल्स मतलब आपको प्रोविजंस पढ़ने चाहिए, वट एवर रेलम यू आर ऑपरेटिंग इन, हम यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, आपके टेक्निकल्स स्ट्रांग होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए लॉ में यूजुअली कहाँ क्या लिखा है। आपसे एक्सपेक्ट ये नहीं, एज अ फ्रेशर एटलीस्ट, एज अ फ्रेशर एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा ये दैट you should know each and every answer to what is being asked, राइट? आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगी दैट आपको सब कुछ पता है, आपको हर ठीक आंसर आना चाहिए, वरना यू आर नॉट द राइट फिट or the right professional for this team. That is not the expectation that people will have. But people will have that you should know, acha, there is a provision regarding this topic in the law. Let me go read it. Let me analyze it and then let me apply it to my practical life scenario here. राइट? आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि आपने रट्टे मार लिए, सिर्फ आपको बस ये पता है कि मैंने लर्न कर लिया इसका टैक्स रेट कितना है, इसका टैक्स रेट कितना है, ये है, ये डिडक्शन मिल जाती है, इतना सब करके मुझे लगेगा कि मैं तो धुरंधर हूँ टैक्स का। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू शुड नो हाउ टू actually apply this, how to actually advise the clients, offer some value addition to your clients using all of these provisions, right? ठीक है मैम। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन स्किल्स। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। आपकी रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स should be top notch. There is no room for bad English grammatical mistakes when you're writing reports, when you're even writing basic emails in a top firm, right? आपकी communication skills top notch होनी चाहिए। आप अपनी टेक्निकल स्किल्स शो ऑफ तभी कर पाओगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट होंगी, राइट? यू विल सी टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द फर्म, राइट? One are they're very technically strong. They know the answers to every question, but they cannot put their point across to the team. Right? जब पार्टनर पूछ रहा है कि what is your opinion in this particular scenario, what do you think should happen, what should the client do, आप वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, अपना थॉट, अपना ओपिनियन रख नहीं पा रहे हो पार्टनर के आगे, राइट? दिस विल नॉट गेट यू एनीवेयर इन द फर्म। ये आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत डेट्रीमेंटल होने वाला है। एज अपोज टू आपकी टेक्निकल नॉलेज तो है ही आपके पास, दूसरा आपको बोलना भी आता है, आपको उसको ठीक से प्रेजेंट करना भी आता है, आपको उसको राइट करना भी आता है। यू कैन कम्युनिकेट योर पॉइंट एंड यू कैन पुट across your point very well, either in a written way or a verbal way, right? These are the people who you'll find at the topmost leadership positions in the big fours, right? So in order to achieve all of this, in order to do all of this, you should have a habit of reading and going through text in a very efficient way. आपको फास्ट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 8-8 घंटे लेके बैठे हुए हो एक ही केस लॉ, एक ही 10 पेजेस आप 4-4 घंटे में खत्म कर रहे हो। दिस विल नॉट फ्लाई, यू विल नॉट हैव दैट टाइप ऑफ टाइम। यू हैव टू बी efficient, you have to be fast, and you have to have the concentration and the habit of going through these lengthy text. आपको केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे, आपको कमेंट्रीज पढ़नी पड़ेंगी, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। देयर आर सम एक्सपर्ट ओपिनियंस, these top firms like big fours have their own portals जहाँ पे उन्होंने for let's say सीनियर काउंसिल से डिस्कशन, हर एक टॉपिक पे आपको फर्म का पोजीशन मिल जाती है, राइट? उन्होंने सीनियर काउंसिल से डिस्कशन की होती है दैट व्हाट शुड द आंसर बी दिस टू बी, what will be the answer in these particular set of facts and scenarios, right? So in order to go through this, in order to research all of this, for example, let's say you have one particular topic that you want to research on, आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। Case laws, commentaries, going through expert articles, the internal firm position papers, so on and so forth, right?
Another very important thing that I feel is often undervalued and not stressed upon enough is that you need to have some level of basic accounting understanding. आपको financial reporting के बारे में पता होना चाहिए, आपको accounting के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए financial statements कैसे बनते हैं. You should know what sort of transactions, how are they reported in the financial statements, right? बिकॉज टैक्स इज नथिंग बट जब आप एक कंप्यूटेशन बनाते हो, आप टैक्सेबल इनकम निकालने की कोशिश करते हो, it is nothing but some level of adjustment made to the book profits, right? आपने एक net profit निकाला हुआ है अपने financial statements के हिसाब से, profit and loss के हिसाब से, you have to validate it along with some income tax provisions, the rules, the effect of that on the tax treaties to reach to a total income as per the income tax act, right? टैक्स की बुक्स में प्रॉफिट अलग बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग बुक्स में प्रॉफिट अलग दिखेगा, राइट? सो यू नीड टू, सिंस टैक्स इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन दीज अकाउंटिंग एंड द treatment of these transactions in the books, in the financial statements, so you should absolutely have some level of accounting knowledge to be a seasoned tax professional. You should very well understand that how a particular transaction has been dealt with in the financial statements or the books of the client, जिससे आपको ये पता हो कि टैक्स में इम्पैक्ट इसका आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, और क्या इम्पैक्ट आएगा वो आपको टैक्स की टेक्निकल नॉलेज से मिलेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज से मिलेगा, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फ्रेमवर्क इन विच द इंडियन इनकम टैक्स ऑपरेट्स, राइट? आपका एक ओवरव्यू लेते हैं, क्या फ्रेमवर्क है, आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज पता होने चाहिए इनकम टैक्स का प्रोफेशनल बनने के लिए, ठीक है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वी ऑल नो हमारा करता धरता कौन है? इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 is the statute under which the income tax provisions in this country are enacted. ठीक है मैम. इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हर साल बजट के थ्रू, द यूनियन बजट दैट हैपेंस इन एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, इस बजट के थ्रू द फाइनेंस बिल, देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स मेड. कुछ भी एडिशंस, डिलीशंस, अमेंडमेंट्स करनी होती है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस में, वो फाइनेंस बिल which later becomes a finance act, उसके थ्रू अमेंडमेंट्स होती है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है मैम. मैम ये बजट डॉक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्या? बजट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बजट पढ़ना, और कैसे पढ़ें हम बजट? व्हाट आर दोज डॉक्यूमेंट्स दैट वी शुड एब्सोल्युटली रीड व्हाइल हियरिंग और रीडिंग अबाउट द बजट, द यूनियन बजट एवरी ईयर? सी, let's see first, let's go to the, see, it is very important, of course, on 1st Feb of every year हमारी निर्मला ताई आती हैं. निर्मला ताई आके एक स्पीच देती हैं, वो बताती हैं कि हम क्या क्या इस साल अमेंडमेंट्स लाने वाले हैं, व्हाट इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू स्पेंड ऑन इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, हम लोग क्या ईज करने वाले हैं, प्रोविजंस रिलैक्स करने वाले हैं, स्ट्रिंजेंट करने वाले हैं. All of that, our finance minister, which is presently Nirmala Sitharaman, she comes and tells us through that speech that she gives. उसके साथ वेबसाइट पे, the union budget website, there are certain documents that you will find uploaded after the speech has happened. One is the memorandum to the finance bill, other is the explanatory notes, and then there is the finance bill itself. ठीक है? फाइनेंस बिल में आपके एक्चुअल डिटेल में बेयर एक्ट की तरह प्रोविजंस इनलिस्टेड होते हैं, जो फाइनेंस बिल आगे जाके प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद फाइनेंस एक्ट बन जाता है. सो फाइनेंस बिल इज नथिंग बट द एक्चुअल प्रोविजंस, द बेयर एक्ट ऑफ द अमेंडेड लॉ. ठीक है. मेमोरेंडम टू द फाइनेंस बिल इज सो इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर एडवाइजिंग क्लाइंट्स, especially for new provisions, whatever is being introduced in the act. क्या होता है इस मेमोरेंडम टू फाइनेंस बिल में? मेमोरेंडम टू फाइनेंस बिल में, फॉर एग्जांपल, कुछ भी गवर्नमेंट एक नया प्रोविजन लाया है, राइट? उस नए प्रोविजन की हिस्ट्री, द गवर्नमेंट्स रैशनल टू ब्रिंग इन दिस प्रोविजन, ऑल ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन इज देयर इन दिस मेमोरेंडम. उनका बैकग्राउंड क्या है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही थी, टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही थी, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ रही थी, कोई चीज
गवर्नमेंट के टैक्स नेट से लीव हो रही थी, वो गवर्नमेंट पकड़ नहीं पा रही थी ट्रांजैक्शंस. All of these reasons are given in the memorandum to finance bill for introducing these um, provisions, whatever have been enacted, right? सो फॉर एग्जाम्पल जब सेक्शन 194S आया था, 194S क्या होता है मैम? टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जो क्रिप्टो, एनएफटीज, इन सब चीजों की टैक्सेशन का एक सेक्शन आया था कि आपको टीडीएस काटना है इनके ट्रांसफर पे. 194S के मेमोरेंडम टू फाइनेंस बिल में, when it was introduced in the Finance Act 2022, there was a whole list of reasoning that came in that how this is such an emerging market, अभी तक ये regulated नहीं है. Now there are so many transactions happening. That is why this was never under the tax net of the government, right? The government was not taxing these type of assets. So to clarify all of that, that explanation was there in the memorandum to the finance bill. Same goes for the explanatory notes. Explanatory notes will have a very brief explanation of the amendments that have been proposed in the finance bill. मैम ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखते कहाँ से हैं? आप बातें तो कर रहे हो, इसको एक बार दिखा भी दो, हम कैसे देख सकते हैं ये सब, राइट? चलो एक बार देखते हैं ये रिसोर्सेज हम कहाँ से एक्सेस कर पाते हैं. ठीक है, लेट्स गो टू गूगल. वी गो टू द वेबसाइट incometaxindia.gov.in. हम एक्ट की बात कर रहे थे, आपको इनकम टैक्स एक्ट मिल जाएगा यहाँ पे, as amended by whichever finance act. You'll find it over here. These are the sections, all of those which you can access right from this page itself. अगर आपको chapter wise ये sections देखने हैं कि chapters में divided होते हैं जो sections, आप वो भी देख सकते हो. कौन से sections इस chapter के अंडर आते हैं, you can see all of that from here. अच्छा अच्छा, दूसरा मैम आपने बताया था कि बजट के डॉक्यूमेंट्स भी हमें मिल सकते हैं. वन वे टू गो अबाउट इज, it is on the union budget's website as only, indiabudget.in. आप यहाँ पे के बजट के डॉक्यूमेंट्स, documents, finance bill, memorandum to finance bill, explanatory notes, and finance minister's speech. All of this you can get on the union budget website, but you can get the same things on the tax portal as well. incometaxindia.gov.in की साइट पे you go to the right, tax laws and rules, you go to budget and bills, you go to, this is the finance act, this is the finance bill, right? लेटेस्ट ईयर यहाँ पे 2022 है अभी तक. बजट की स्पीच ये रही जो हमारी निर्मला ताई देती हैं, कंटिन्यूसली बोल बोल के गला सुखाती हैं अपना. This is the speech that you will find. Here is the finance bill which contains the provisions of the amendments. Right? Then this is the memorandum to the finance bill. एक बार देखें मैम, 194S की बात कर रहे थे आप, क्या लिखा था उसमें? See, scheme for taxation of virtual digital assets. Virtual digital assets have gained tremendous popularity in recent times, and the volumes of trading in such digital assets has increased substantially. A market is emerging where payment for the transfer of virtual digital assets can be made through this. See, now they have given the entire reasoning for why this provision was inserted. This is, मैम ये important क्यों है हमारे लिए, समझना important क्यों है? See, when you're trying to advise your clients in some particular set of facts, sometimes it so happens that the law is not very clear. आपके लिए हर चीज बहुत clearly spell out नहीं होगी हमेशा के आपके exact facts की से मैचिंग आपको exact चीज लॉ में पड़ी हुई मिल जाए, right? Sometimes you have to draw inferences, you have to take support of case laws, you have to reach a logical conclusion of whatever this situation can be
read with of course the provisions that are there under the act, right? Sometimes then there, to understand why a particular provision was amended, inserted, deleted, that is when this memorandum to finance bill comes into play, right? अच्छा, बजट के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? इनकम टैक्स एक्ट हमने देख लिया था, एक्ट्स यहाँ पे थे हमारे इनकम टैक्स के। इसके साथ मैम वो भी तो होते थे, रूल्स, रूल्स भी तो होते हैं। एब्सोल्युटली, आप यहाँ पे जाके टैक्स लॉज एंड रूल्स में जाके यू कैन गो टू द ड्रॉप डाउन ऑफ रूल्स, यू कैन सिलेक्ट इनकम टैक्स रूल्स, सिमिलर सॉर्ट ऑफ लिस्ट विल अपीयर फॉर ऑल द रूल्स दैट आर देयर इन द इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप कोई रूल पढ़ रहे हो, आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हो जिसमें लिखा है कि इसके रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, जाके उसमें डिटेल में देख लो। सो फॉर एग्जाम्पल आप लेट्स से सेक्शन 50 सीए जो बात करता है कि सेल्स कंसिडरेशन कुछ पर्टिकुलर केसेस में क्या होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ जब शेयर ट्रांसफर होता है जो अदर देन लिस्टेड शेयर्स होते हैं, राइट? सेक्शन 50 सीए में प्रोविजंस प्रिस्क्राइब्ड है that there are some rules that have been prescribed जो आपको यूज करने हैं while calculating the right amount of consideration on which you can transfer some unlisted shares, right? तो एक बार देखते हैं कि वो आप कैसे you can link whatever section you are reading to the rules. You go to section 50 CA where the consideration received are accruing as a result of the transfer by an assessee of a capital asset being share of a company other than a quoted share is less than the FMV of such share determined in such manner as may be prescribed. As may be prescribed इसका क्या मतलब है? या तो इसका कोई नोटिफिकेशन आया होगा या इसका कोई रूल है, राइट? रूल के उस एज में भी प्रिस्क्राइब के ऊपर आप एक ऊपर सब नोट देखोगे, एक रेफरेंस पॉइंट देखोगे, आप उसको क्लिक करोगे तो उसमें लिखा होगा सी रूल 11 UAA. So you will find whatever rule is there which is linked to the particular provision, right? Okay. Another thing you should know about is there are certain circulars and notifications as well जो government CBDT issue करती है. Where can you find these? You can find these same under tax laws and rules. You go to circulars and notifications. For example, let's you want to search a particular circular. You can select the years from here. अगर आपको नंबर पता है, आप कोई particular नंबर ढूंढ रहे हो तो आप वो वहां पे डाल करके सर्च कर सकते हो. But if you will see here, ये लोग सब chronologically these have been sorted, but these are of course in descending order. So latest आपको ऊपर मिलेगा circular, similar goes for notifications as well, right? So for example, one of the circular you will see is the extension of the due date for filing the return, right? 31st October 2022 थी ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द टैक्स रिटर्न जिनमें ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस नहीं अप्लाई होते थे, बट वो शिफ्ट होके 7th नवंबर हो गई थी, राइट? So this is what you will see in circulars. This is just one example. Of course, the issues can be varied. ठीक है मैम। इसके बाद और क्या आता है कॉर्पोरेट टैक्स फ्रेमवर्क में? मैम हमने एक्ट पढ़ लिया, मैम हमने रूल्स पता कर लिया, सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस होते हैं, बजट के डॉक्यूमेंट्स कैसे पढ़ सकते हैं हम, कौन से डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट होती है, हमने सब पढ़ लिया। मैम केस लॉज वगैरह के बारे में भी हमने बहुत सुना, बहुत केस लॉज होते हैं, आप भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है केस लॉज की। एब्सोल्युटली, केस लॉ से what case laws are nothing but judicial jurisprudence. Case laws are nothing but जुडिशियल प्रेसिडेंस, राइट? किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक क्वेश्चन पे, एक प्रोविजन पे देर आर यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ केस लॉज जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स ने प्रोनाउंस किया होगा. दे बिकम सॉर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर यू टू फॉलो. केस लॉज में यूजुअली दिस इज जस्ट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट happens, what is the relevance of a case law, how can you rely on the case law. सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रूलिंग आती है, दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड. लॉ ऑफ द लैंड बोले तो पूरे इंडिया में वो अप्लाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कह दिया, दैट स्टैंड्स एप्लीकेबल टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. एक्ट में कुछ भी लिखा है वो ओवर रूल हो जाएगा, राइट? देन हाई कोर्ट. हाई कोर्ट क्या बोलता है?
हाई कोर्ट में कोई भी रूलिंग आती है, लेट्स से दिल्ली हाई कोर्ट में आई है, नाउ व्हाट हैपेंस इज दिल्ली हाई कोर्ट के दूसरी बेंचेस एंड सम लोअर ऑल ऑफ द लोअर कोर्ट्स अंडर द दिल्ली जुरिस्डिक्शन, उन पे ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग हो जाती है, राइट? अब दिल्ली में ये लॉ बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट में कोई रूलिंग दी कर्नाटका को भी वो फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, राइट? द हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर jurisdiction, if that high court pronounces any ruling, बाकी उसके साथ वाले बेंचेस, ऑफ कोर्स हाई कोर्ट की कोई दूसरी बेंच भी हो सकती है, एंड उसके सारे लोअर कोर्ट्स, फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल्स तक को वो फॉलो करना पड़ेगा जो दिल्ली में है, राइट? ऑफ कोर्स इफ यू डोंट वांट टू फॉलो देन यू हैव टू डिस्टिंग्विश कि कैसे फैक्ट्स डिफरेंट है आपके केस में और हाई कोर्ट के जजमेंट के केस में, राइट? सो आपका अगर कोई भी आप इशू पे रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपको कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मिल जाती है दैट इज वर्किंग इन योर फेवर, द काइंड ऑफ टैक्स पोजीशन दैट यू आर ट्राइंग टू टेक, तो वो आप क्लियरली उस पर रिलाई कर सकते हो। हाई कोर्ट के केस में of course if your client is operating in the that jurisdiction, आपको jurisdictional high court का ruling मिले, that is a great segue, you can absolutely rely on that। अगर दूसरे किसी स्टेट की हाई कोर्ट का रूलिंग मिलती है, of course you can still draw on principles from it, but आपके कोर्ट्स पे वो लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। आपका कोर्ट अगर आपकी उससे अग्री करता है, टैक्स ऑफिसर या वो कोर्ट आपके पोजीशन से अग्री करता है दैट यू नो दिस, even if it was Karnataka High Court, that makes sense, that is fairly you know facts are similar to that, तो आप वो फिर भी रिलाई कर सकते हो आप, but of course the preference is to the jurisdictional high court decisions, ठीक है? ट्रिब्यूनल्स के ऑफ कोर्स आप टैक्स ऑफिसर्स या सीआईटी अपील्स के आगे आप ट्रिब्यूनल लेवल के जजमेंट्स आप कोर्ट कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगा अपना केस पुट फॉरवर्ड करने से। ऑफ कोर्स अगर आप दिल्ली जुरिस्डिक्शन में वर्क कर रहे हो तो दिल्ली ट्रिब्यूनल के केसेस आपके फेवर में होंगे, तो दैट विल वर्क इन योर फेवर। ओके, केस लॉस चाहिए क्यों होते हैं? Case laws usually help you to put forth some interpretations that are not very clearly defined under the law। कुछ वर्ड्स के डेफिनेशंस हैं, कुछ वर्ड्स का मीनिंग है, कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो नहीं समझ आ रहा है कि इस केस में ये प्रोविजन अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये इशू किसी कोर्ट के पास ऑलरेडी जा चुका है, कोर्ट ने प्रोनाउंस कर रखा है, तो यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम दैट। जहां पे भी लॉ थोड़ा अनक्लियर होगा, वहां पे कोर्ट स्टेप इन करेगा टू गिव their interpretation of the law, right? Of course, another thing that you should be in terms of resources, what you should be mindful of while you're working in the tax field and this corporate and international tax field is the commentaries। अब commentaries होती हैं, बहुत renowned authors ने commentaries दी होती हैं with respect to all sections, all issues of and whatever is there under the Indian Income Tax Act, like act, right? So for example, let's say there's a very popular commentary called Sampath Iyengar। Now Sampath Iyengar has like maybe 11 or 12 volumes जिसमें section wise divided है। whatever issue you can find under the sun for that particular section, you'll find in that set of commentary, right? For example, आपने section 32 depreciation के बारे में आपको जो भी issues you can think of under the sun, right? all the relevant case laws that have worked in that section 32(1) में, for example, all of that you'll find under one particular module of that commentary। This is not something that you can very easily legally rely on in terms of when you go to the courts, but of course you can of course draw you know where to look for, right? आपको पता है कि आपने commentary में एक जगह पे renowned authors ने कहीं एक जगह पे अपनी commentaries में summarize कर रखा है that what are the different level of case laws or judicial precedents that happened in this particular issue that you are trying to research on। आपका research effort minimize हो जाता है इससे, right? Similarly, there is a very popular commentary in the international taxation field, which is for Nilesh Modi, that you can rely on for whenever you are working with, double taxation avoidance agreements, which are called tax treaties. All of that we'll do in the future. But this is just a summary of what all resources that you can use or you have to rely on, you will be encountering in your journey in the corporate and international taxation field. Okay. अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम
कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, some basic things that we should know before we do a deep dive into the huge world of corporate and international tax. हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि ये कुछ बहुत बेसिक चीजें हम सबको पता है, थोड़ा सेगवे इजी हो जाएगा हमारे लिए आगे वाली क्लासेस के लिए। ठीक है मैम। मैम अच्छा, ये हमें पता होगा कि ऑलरेडी आप कोई नई चीज पढ़ाने वाले हो? 99% चीजें आप लोगों को पता होंगी। जो आईपीसीसी से आया है उसने आईपीसीसी में किया होगा, जो सीए फाइनल दिया है उसको तो डेफिनेटली पता होगा। यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू आर ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो डेफिनेटली यू वुड नो दीज थिंग्स। बट इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट हो, इसीलिए वी शुड एंश्योर दैट ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज एंड वी नो दीज बेसिक terms, basic concepts which will help you to understand this course better. ठीक है मैम। अच्छा, पहला आता है डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड टैक्स बुक्स। अच्छा एक बात बताइए, डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड टैक्स बुक्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो हम हमारा ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करता है, क्या हम उसी में उसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस में एक टर्म होती है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या हम उसी पे टैक्स देके खत्म नहीं कर सकते क्या? वो भी तो ऑडिटर ने सर्टिफाई किया है भाई, वी शुड रिलाई ऑन दैट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑल्सो। नो, वी ऑल नो टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में rules different है from what they may be in let's say any Indian GAAP, right? The financial statements that are made, that are certified by the statutory auditor are made in accordance with Indian GAAP or IFRS or similar standards, right? तो वो accounting standards different है, but जो rules income tax में दिए गए हैं वो different है। तो हमें जो profit और loss as per the फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, चाहे वो ऑडिटर ने सर्टिफाई किया है, हमें उसको स्टार्ट करके मे बी वी हैव टू डू सम एडजस्टमेंट्स एंड गेट ऑन टू द प्रॉफिट एज विच विल बी एक्सेप्टेबल इन दी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, राइट? ठीक है मैम। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेड एज पर IGAP IFRS cannot be considered as it is to calculate the income tax liability of any taxpayer. ठीक है, माना आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने सर्टिफाई किया हुआ है वो, बट वो आप एज इट इज उठा के उस पर टैक्स नहीं दे सकते। दिस इज मे बी अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। ऑफ कोर्स आपके लेवल, आपको थोड़ी सी यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू नो द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज सर्टिफाइड दिस प्रॉफिट नंबर और लॉस नंबर, दिस इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बट उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से टैक्स निकालना है करेक्टली तो। ठीक है मैम। Adjustments in the form of allowances and disallowances are required to be made in accordance with the income tax provisions. ठीक है मैम, आप क्या फालतू की बातें रिपीट करे जा रहे हो? आईपीसीसी बचपन से सीखते आए हैं हम, कुछ अलाउंसेस होती हैं, कुछ डिसअलाउंसेस होती हैं, वो हमें करनी पड़ती है, तब जाके टैक्सेबल इनकम निकल के आती है। मुझे बिल्कुल पता है तुम बहुत स्मार्ट बच्चे हो, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस class it is better that we just understand the rationale behind everything, we understand, don't miss out the basic nuances जिससे आगे चल के हमें प्रॉब्लम हो। ठीक है मैम, we trust you, आप कराओ जो कराना है। ठीक है। अच्छा, this is something which some of you may know, some of you may not know। ठीक है, ये एक हम प्रैक्टिकल इंसाइट दे रहे हैं कि आपको यूजुअली हमेशा नहीं होगा, इसमें प्लस माइनस चीजें हो सकती हैं, बट यूजुअली इन डॉक्यूमेंट्स को क्या इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपको किसी भी टैक्स पेयर की, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कॉर्पोरेट है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो LLP है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन की नीड पड़ेगी सो दैट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट योर प्रोसेस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, आप कंप्यूटेशन बनाना स्टार्ट कर सको। ठीक है मैम, क्या है ऐसे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द पीरियड, जिस भी पीरियड की, जिस भी फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न भरना चाह रहे हो, जिसकी आप कंप्यूटेशन बनाना चाह रहे हो, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप उससे स्टार्ट करोगे
दैट इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? ठीक है मैम। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट्स भी जरूरी होते हैं क्या मैम? एब्सोल्युटली। नोट्स टू अकाउंट्स में यू विल गेट टू know certain clarifications in relation to maybe certain disclosures made in the different schedules of the financials. Also, जो चीजें वैल्यू वाइज कई बार रिपोर्ट नहीं होती हैं इन द मेन स्केड्यूल्स इन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, बट एज नोट्स टू अकाउंट्स कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो इवेंट्स होते हैं या कुछ क्लैरिफिकेशंस ऐसी होती हैं जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट करता है नोट्स टू अकाउंट्स में, राइट? टू मेक द numbers displayed in the balance sheet, the profit and loss and the entire financial statements, the statutory auditor takes help of the notes to accounts to portray the picture better. Maybe जो numbers में नहीं वो कह पा रहा है वो words में notes to accounts में कहता है। ठीक है मैम। Audited statutory audited financial statements along with the notes to accounts। ठीक है। Trial balance and breakup of amounts in all schedules। ट्रायल बैलेंस और हर अमाउंट, हर स्केड्यूल के अमाउंट्स का ब्रेकअप हमें क्यों चाहिए, राइट? सो हाउ आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ इज प्रॉफिट एंड लॉस presented? You will see on the face of the profit and loss, you will see expenses का एक मेन हेडिंग होगी, उसमें होगा डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में जाके आपको एक नोट का रेफरेंस मिलेगा, नोट के रेफरेंस में आप एक जाके अंदर के उसके स्केड्यूल पे जाओगे, मे बी देयर विल बी 20 सब हेडिंग्स ऑफ दोज एक्सपेंसेस, राइट? बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अगर जो फेस पे 20 एक्सपेंसेस आ रहे हैं, क्या उनका नेचर सबका डायरेक्टली आपको नाम से पता चल जाएगा? यू विल फाइंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यू विल फाइंड रेट्स एंड टैक्सेस, यू विल फाइंड कम्युनिकेशन एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। आप लोगों को काफी चीजें क्लब दिखेंगी उन स्केड्यूल्स में, राइट? तो फॉर यू टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ the nature of expenses of each and every type of expense that has been recorded in the books, it is very important for you to take the trial balance, and as well as अगर ट्रायल बैलेंस है आपको डायरेक्टली पूरा, और ट्रायल बैलेंस भी आगे अगर बाइफिकेटेड है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू नो के व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर रिकॉर्डेड इन द this particular ledger or account code, let's say, you will have to ask for the breakup of the amounts that are coming in those trial balance or the schedules। ठीक है मैम। टैक्स ऑडिट नेक्स्ट क्या आता है? Tax audit report certified by the tax auditor, same as the statutory auditor in most cases, but may be different. Only if applicable. मैम टैक्स ऑडिट सब में तो नहीं होता था, एब्सोल्युटली हम सब ने पढ़ा है। इफ ओनली यू ब्रीच अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, ओनली देन यू आर रिक्वायर्ड बाय लॉ अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ टैक्स ऑडिटर। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से ऑडिट होता है, राइट? दिस इज डिफरेंट देन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, बट practically in most cases usually what you will see is statutory auditor ही tax audit report sign कर रहा होता है, because उन्होंने पूरा accounts का books का audit करा है, तो उनको पता है कि their effort is minimized, right? So this is better for the taxpayer also and the statutory auditor also, right? So tax audit के time पे उनका effort बहुत minimize हो जाता है because it immediately comes after the stat audit, right? So usually cases में आप ये देखोगे जो statutory auditor ने फाइनेंशियल साइन किए होते हैं, यूजुअली वो ही टैक्स ऑडिट साइन करता है। ठीक है मैम। अच्छा, ओनली इफ एप्लीकेबल मतलब अगर वो थ्रेशोल्ड ब्रीच हो रही है उस टैक्स पेयर पे, उस एसएससी पे, अगर एप्लीकेबल है 44 AB टैक्स ऑडिट उसको कराना है, तो ही वो हमारे हेल्प हो सकती है हमें उसकी, राइट? ठीक है मैम। फॉर्म 26 AS डाउनलोडेड फ्रॉम द ई फाइलिंग पोर्टल। फॉर्म 26 AS क्या होता है मैम? हम सुना तो है, एक बार आप बता भी दो। ठीक है। फॉर्म 26 AS इज नथिंग बट अ समरी स्टेटमेंट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका पूरी समरी एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एक टैक्स पेयर की जितना भी टीटीएस कटा है या उसने टीसीएस काट के जमा किया है, राइट? ये सब की समरी एक स्टेटमेंट में आती है जिसको बोलते हैं फॉर्म 26 AS। ठीक है। फॉर्म 26 AS में आपके पास और भी डिटेल्स होती हैं, जैसे आपने अगर कोई एडवांस टैक्स का या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का चालान पे किया तो आपको वो वाली डिटेल्स भी दिखेंगी। अगर आपको कोई उस साल में रिफंड क्रेडिट हुआ है तो आपको वो वाली डिटेल्स भी उसमें दिखेंगी। बट
largely what Form 26AS is helpful for is for you to ensure that what is the amount of tax which has been deducted at source for this particular taxpayer जिसका आप computation of income या return भरने की कोशिश कर रहे, right? ठीक है मैम. अच्छा मैम, कहाँ से मिलता है हमें ये Form 26AS? Form 26AS is something which you can download from the e-filing tax portal of every taxpayer. ठीक है, हम आने वाली क्लासेस में जब रिटर्न बनाने शुरू करेंगे तब हम उससे पहले एक बार देखेंगे कि Form 26AS भी हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? इन सम केसेस व्हाट विल हैपन इज इट विल डिपेंड अपॉन the kind of firm that you work in, what kind of relationship you have with your clients, and of course the rules that your firm have established in terms of कि आप directly client के portal से जाके 26AS ले सकते हो या फिर आपको client को बोलना है और client download करके आपको देगा, right? So it can depend, vary case to case, but हम एक बार देख लेंगे क्लासेस में आने वाली कि अगर हमें निकालना पड़ जाए तो कैसे निकलता है. ठीक है मैम, ओके. नेक्स्ट वी हैव हेड्स ऑफ इनकम. मैम आप क्या हम मतलब बच्चा समझते हो क्या? अब हमें हेड्स ऑफ इनकम पढ़ाओगे? अब आप मास्टर क्लास में, कॉर्पोरेट टैक्स की मास्टर क्लास में आप हेड्स ऑफ इनकम पढ़ाओगे? आई नो तुम लोग बहुत समझदार बच्चे हो, तुम लोग आईपीसीसी पास आउट हो, तुम लोग सीए फाइनल अटेम्प्टेड हो, या फिर कुछ लोग तो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो. आई नो यू गाइज ऑल नो दैट. मेरे लिए कर लो, है ना? क्या फर्क पड़ता है? 2 मिनट एक्स्ट्रा ही तो स्पेंड कर रही है मैम. ठीक है मैम, कोई बात नहीं, आप रिफ्रेशर दे दो हमें. हमें अब समझ आ रहा है मैम आपने रिफ्रेशर क्यों रखा है स्लाइड्स का नाम. हमें ये चीजें ऑलरेडी पता हैं, हमें पता है, हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे, बस हम रिवाइज कर रहे हैं, एक रिफ्रेशर ले रहे हैं, सो दैट ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स आर इनग्रेन्ड इन आवर माइंड, सो दैट ईच एंड एवरी कोर्स, ईच एंड एवरी क्लास फ्लोज वेरी इजिली एंड सीमलेसली. ठीक है मैम. पहला क्या होता है हेड ऑफ इनकम? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. हम सबको पता है कोई भी टैक्स पेयर, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, कोई भी टैक्स पेयर असेसी अगर कोई बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है तो उससे जो भी उस एक्टिविटी से, उस बिजनेस एक्टिविटी या प्रोफेशनल एक्टिविटी से उसको जो भी इनकम अर्न हो रही है वो टैक्स होगी एज पीजीबीपी. ठीक है मैम, ये हमारा है सबका बाप. It's the daddy of all heads. We know how extensive it is, how meticulous it is to calculate prepare a taxable computation for PGBP. We'll do all of that in the upcoming lectures. कोई डरने की बात नहीं है. But you'll see the most amount of adjustments, the most amount of provisions being used in this PGBP head of income. ठीक है मैम. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स. मैम हमें पता है अगर कोई भी कैपिटल एसेट सेल होता है या फिर कोई और ट्रांसफर होता है तो उससे जो भी इनकम आती है वो कैपिटल गेन्स की तरह टैक्स होती है. कैपिटल गेन के मैम बहुत कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ एग्जेम्पशंस होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एसेट हमें कुछ एग्जेम्पशंस भी मिल जाती हैं. मैम डिटेल में हमें सब पता है, आप थ्योरी पढ़ाने मत बैठो, हमें बस याद है वी नो दैट एनी सेल और ट्रांसफर फ्रॉम अ कैपिटल एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट, अच्छा कौन सा होता था कैपिटल एसेट? जो आपने इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड कर रखा है, राइट? दिस इज नॉट योर स्टॉक इन ट्रेड, यू डोंट डू ट्रेडिंग एक्टिविटीज विद इट. अच्छा ट्रेडिंग एक्टिविटी होगा तो क्या होगा? कोई कैपिटल एसेट, फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग है कोई और आप रियल एस्टेट का बिजनेस है आपका, आप बहुत रेगुलरली उसमें बिल्डिंग्स खरीदते बेचते हो, आप स्टॉक मेंटेन करते हो बिल्डिंग्स को, आपने इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं, लॉन्ग टर्म तरह से नहीं खरीद रख रखा है. बट इस केस में क्या होगा? बिजनेस इनकम होगी या कैपिटल गेन होगा? बिजनेस इनकम होगी, क्योंकि वो ट्रेडिंग एक्टिविटी से इनकम अर्न हो रही है. ठीक है, एज अपोज टू मी, फॉर एग्जाम्पल आई ओन अ हाउस, आई एम नॉट देयर टू ट्रेड इन इट, आई हैव इन्वेस्टेड इन इट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस. मैं चाहती हूँ कि अगले 20-25 साल तक वो एक अच्छा रिटर्न दे मुझे. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए 20-25 साल तक उससे रेंटल इनकम कमाना चाहती हूँ. 20-25 ईयर्स में जब वो अप्रिसिएट कर जाएगा तो मैं उसको बेच दूंगी विद अ हैंडसम प्रॉफिट, राइट? सो व्हाट एट दैट टाइम आफ्टर 20-25 ईयर्स व्हाटएवर आई विल अर्न इज नथिंग बट कैपिटल गेन. ठीक है मैम,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मैम ये तो हमें पता है रेजिडुअरी हेड होता है, ये आप अभी क्या बात कर रहे हो, ये वैसे 5वें नंबर पे आता है। आई नो 5वें नंबर पे आता है, बट यूजुअली व्हाट वी आर फोकसिंग हियर इज कॉर्पोरेट टैक्स, यूजुअली इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी तो होता ही नहीं है, income from house property and income from salary is something which largely applies to individuals only, right? तो ये तीन यूजुअली आप बहुत ऑफन देखेंगे जो कॉर्पोरेट टैक्स की कॉर्पोरेट्स की टैक्सेबल इनकम बनाते टाइम या रिटर्न भरते टाइम। सैलरीज एंड हाउस प्रॉपर्टी समथिंग दैट यू विल लार्जली सी फॉर इंडिविजुअल्स ओनली, राइट? अच्छा, अदर सोर्सेज की मैम और क्या टाइप की इनकम होती है? कंपनी क्या कमा सकती है? डिविडेंड कमा सकती है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो एफडी में इन्वेस्ट कर देती है, अपने रिलेटेड पार्टी को डिपॉजिट्स दे देती है, एडवांसेस दे देती है, उस पर इंटरेस्ट कमाती है, वो लोन्स दे देती है अपने रिलेटेड पार्टीज को, फॉर एग्जाम्पल। all of this is some dividend interest, other things that the company is earning which you cannot maybe put in the other heads, you'll tax it as income from other sources, ठीक है मैम? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लार्जली केसेस में, अनलेस ऑफ कोर्स देयर इज अ स्पेसिफिक रेट स्पेसिफाइड फॉर द टाइप ऑफ इनकम, लार्ज केसेस में आपका जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है, जो एक कॉर्पोरेट पे फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी हो तो आपका जो यूजुअल टैक्स रेट है उस टैक्स रेट पे आपकी इनकम टैक्स हो जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, ठीक है मैम? इनकम फ्रॉम सैलरी, मैम हमें पता है जो भी जहाँ पे भी एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होता है और जो भी हम रेम्यूनरेशन अर्न करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एम्प्लॉयर रिलेशनशिप या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से निकल के आ रहा है, तो ये जो भी रिसीट्स होंगे एम्प्लॉय के हाथ में एज सैलरी टैक्स होंगे, ठीक है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैम हमें सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप जो एग्जाम्पल अभी दे रहे थे, रेंटल इनकम अगर आप कमा रहे हो, आपने जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ले रखी है, उस रेंट जो आपको रिसीव हो रहा है उस पे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से टैक्स दोगे, ठीक है जी? तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें सबको पता है हेड्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है जी? लेट्स मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट विल बी सीइंग, एक फॉर्मेट देखेंगे बिजनेस इनकम या पीजीबीपी इनकम की कंप्यूटेशन, एक देखेंगे हम यूजुअली इन सर्टेन कॉमन सेट्स ऑफ फैक्ट्स, हाउ डज इट लुक लाइक? एक इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट है, ऑफ कोर्स इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है मैम? ये हम बस एक ओवरव्यू देखेंगे, अभी एक रिफ्रेशर लेंगे, ये सब हमने आईपीसीसी में कर रखा है, आई एम श्योर यू गाइज नो ऑल ऑफ दिस, बट just for the sake of efficiency here, so that we don't like have to spend time in the next classes to go back to our IPCC notes and understand all of this, we have just included it as a refresher, ठीक है? What will be the starting point? मैम आपने starting point बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से जो प्रॉफिट होता है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं, जो क्या होता है ये ऑडिटेड होगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने अपना ठप्पा लगा रखा है that the profit that is appearing in the financial statements, that the profit that is appearing in the profit and loss account is fine. So this is a great starting point for us, ठीक है? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैम एक बात बताओ, जो फाइनल एंड में नेट प्रॉफिट होता है उसमें तो एक लेस करंट टैक्स एक्सपेंस भी तो हुआ होता है, उसमें उस साल का टैक्स भी तो माइनस होके वो नेट प्रॉफिट वाली फिगर आती है ना? एब्सोल्युटली, व्हाट यू विल सी एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स, राइट? उस साल में उस कंपनी ने टैक्स देना है कि नहीं देना है, that is subjective of course, but how it works is profit before tax less tax expense less which comes out to net profit as per profit and loss account which is after tax, ठीक है? अब हम मैम टैक्सेबल इनकम तो हम अब निकाल रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना अगर हम ये वाला इनकम टैक्स अगर कंसिडर कर लेंगे तो। एब्सोल्युटली, सो व्हाट वील डू ओवर हियर इज, हम लोग इनकम टैक्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है उस पीरियड का हम उसको ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक का मतलब क्या होता है मैम? अगर एक प्रॉफिट या गेन है उसमें अगर मैंने how is it this net profit been calculated? Net profit
प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस लेस टैक्स एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। अब मुझे अगर ऊपर वाले प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना है तो मैं इसको एड बैक करूंगी, राइट। सिंपल मैथ्स है, राइट। एड इनकम टैक्स फॉर द पीरियड, ठीक है जी। What will we get? Profit before tax as per profit and loss account. Technically, this should be the starting point of your PGBP. अब आप इसमें इनकम टैक्स के हिसाब से आप एडिशंस डिलीशंस कर सकते हो, ठीक है मैम। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर अदर हेड्स या स्पेशल रेट्स। तो जो हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में, that you have to first, when whatever income you receive, you have to first classify it into different heads of income so that उसकी appropriate taxability determine हो पाए, right? सारे कुछ डिफरेंट हेड्स में बहुत स्पेशल रेट्स दिए हुए होते हैं कुछ टाइप ऑफ इनकम के लिए, राइट। सो दोज विल बी डेल्ट सेपरेटली, राइट। तो इस पीजीबीबी कॉम्प्यूटेशन के लिए हम पहले उसको हटा देंगे, राइट। सो दीज विल बी डेल्ट सेपरेटली लेटर, ठीक है मैम। अच्छा, ऐड क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। मैम ये जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला हुआ है आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस हुई होती है ना? एब्सोल्युटली। बट वी ऑल नो सेक्शन 32 के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट की अलाउ होती है, राइट, नॉट एज पर कंपनीज एक्ट, राइट। So what we'll do is we'll add back the depreciation as per Companies Act and we'll subtract the depreciation as per Income Tax Act, which is nothing usually but section 32, ठीक है जी। ओके, इसके ऑफ कोर्स एडिशनल एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती है, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस आ जाते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सेपरेट, बट ऑफ कोर्स लार्जली इट इज सेक्शन 32। ओके, अच्छा, उसके बाद हम कुछ डिसअलाउंसेस करते हैं। मैम डिसअलाउंस का एग्जांपल दो। देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ एग्जांपल्स। सेक्शन 37 में आप बिजनेस एक्टिविटी के लिए, अपने बिजनेस कमर्शियल एक्सपीडियंसी के लिए अगर कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, अगर आप कोई पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, आपको वो खर्चा अलाउ नहीं होता है, राइट। अगर आपने कुछ फाइन्स पेनल्टीज दी हैं किसी और लॉ की कॉन्ट्रावेंशन में जो अभी इन फोर्स है, जो एक्टिव है वो लॉ, उस केस में आपको अलाउ नहीं होती है, राइट। 37 में CSR एक्सपेंसेस हमें अलाउ नहीं होते हैं, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर सम काइंड ऑफ डिसअलाउंसेस दैट यू कैन यू हैव टू एड बैक, ठीक है। एड लेस एडजस्टमेंट्स एज पर ICDS। मैम ICDS क्या होता है? सुना सुना तो लग रहा है। ICDS इज इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। दिस इज नथिंग बट सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर टैक्स। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे AS होता है, IND-AS होता है, IFRS होता है, यहाँ पे ICDS आर सॉर्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के स्टैंडर्ड्स। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इनकम का ट्रीटमेंट बहुत कैटेगोरिकली डिफाइंड है। वी ऑल नो, वी हैव ऑल रेड दिस। अगर ICDS और इनकम टैक्स एक्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो व्हाट विल प्रिवेल? द इनकम टैक्स एक्ट विल प्रिवेल, ठीक है मैम। तो डिपेंडिंग अपॉन ICDS के कुछ भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं, आपको माइनस भी करना पड़ सकता है, इनकम प्लस भी करना पड़ सकता है, राइट। सो वट एवर इज द इम्पैक्ट दैट यू विल टेक फॉर इन योर PGBP इनकम। अच्छा, ये और भी कहाँ होता है? ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज होता है, राइट। द इम्पैक्ट ऑफ ICDS ऑन द टैक्सेबल इनकम, दैट इज ऑल्सो डिस्क्लोज इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन वी हैव ऑलरेडी डन। एड अलाउंसेस, ये ऐड नहीं होगा, लेस होगा। उस इनकम में से हम जो खर्चे हमें अलाउड हैं वो हम इस बार क्लेम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर मैंने TDS नहीं काटा था कोई एक पेमेंट करने से पहले, मुझे लास्ट ईयर वो डिसअलाउ हो गई थी। उसके बाद मैंने उस पर टैक्स जमा कर दिया, तो जिस साल मैंने टैक्स जमा किया है उस पर मुझे वो अलाउ हो जाएगी, राइट। ओके, all of these allowances and disallowances later, what you'll get is gross income chargeable to tax as PGBP. इस पे टैक्स दे देना है क्या? नहीं, not yet. In some of the companies, what you'll see is, हम सब ने कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमें पता है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होती है, अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस क्या होते हैं। इफ अ कंपनी और एनी टैक्स पेयर हैज अ बैलेंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, एंड अगर आप इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से एलिजिबल हो उसको सेट ऑफ करने के लिए,
दिस इज द पॉइंट वेर यू विल सेट ऑफ द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस. ठीक है, ओके. What will you get? Net income chargeable to tax as per PGBP. ठीक है मैम, ये हमने पढ़ा हुआ है, आपने रिफ्रेशर दे दिया, थैंक यू. बट वी आर प्रिटी कंफर्टेबल. आई नो यू आर, बट आई जस्ट वांटेड टू डू माय पार्ट सो दैट आपको बस एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े अलग से पढ़ने की. ठीक है मैम, ओके. व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, नेक्स्ट हम लोग ना बस एक लास्ट में, बिफोर वी एंड आवर क्लास टुडे, I just want you to get a feeler, a rough idea of what are the topics that will be covered in this course, right? हम लोग को important है ये समझना that what are we in for, right? About corporate and international taxation, career prospects, framework of Indian law, etc. All of this we have done in today's class earlier. This is done, right? You don't need to worry about this. नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इन क्लासेस में, व्हाट विल स्टार्ट विद इन द नेक्स्ट क्लास इज फॉर्म 3CD, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जिस फॉर्म में जाता है, हम उसके रिस्पेक्टिव क्लॉजेस देखेंगे, किस टाइप के क्लॉजेस होते हैं, क्या क्या डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड होते हैं. आई नो most of you have read this, of course, in tax and audit. Some of you would have even practically made this, used this. I know you guys would be smart enough. बट क्योंकि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में क्या देखा था, पीजीबीपी की इनकम बनाने के लिए, टैक्सेबल इनकम बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू रिलाई ऑन इज वन ऑफ द थिंग्स इज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, राइट? तो फॉर्म 3CD हमें पढ़ना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के डिस्क्लोजर्स 3CD में जाते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड और कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ दैट इन आवर टैक्सेबल इनकम कॉम्पिटिशन फॉर इनकम, राइट? ओके, ये अर्जित सर कराएंगे. You know he's a master in audit, so he will briefly take you through the tax audit report clauses. ठीक है जी. What we'll do next is computation of taxable business income, that is PGBP, filling up return form for corporates. What I will do with you in this class itself is हम लोग एक practical case लेंगे. Practical case में what we'll see is स्टार्टिंग से आपको जिस टाइप का इंफॉर्मेशन मिलती है क्लाइंट से, अपने क्लाइंट से जिसकी भी आपने रिटर्न बनानी है, वो जो आपको इंफॉर्मेशन देगा, हाउ विल यू यूज इट इन, हाउ विल यू पुट इट इन द कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये स्पेसिफिकली हम पीजीबीपी का करेंगे, बिकॉज वी ऑल नो हाउ मेटिकुलस दैट इज, राइट? पीजीबीपी में इतनी एडजस्टमेंट्स होंगी, इतने अलाउंसेस, इतने डिसअलाउंसेस होंगे, दैट वी नीड a wholesome view of this, right? तो हम लोग पीजीबीपी की एक कंप्यूटेशन बनाएंगे, क्या यूज करते हुए, फाइनेंशियल्स देख के, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देख के, 26 ईयर्स अगर जरूरत होगी तो वो देख के, राइट? आफ्टर वी हैव मेड ऑल ऑफ दिस द computation, we'll also see how will you put all of this in the return form utility, right? मैम आप इतना भी कराओगे? Absolutely. This is a practical course. This is a very practical hands-on ट्रेनिंग दैट यू आर गेटिंग हियर. आपको बुक पढ़ के तो पता है कि टैक्स ऑडिट क्या होता है, आपको बुक पढ़ के सम सॉल्व किया आपने कि कैसे निकालते हैं टोटल इनकम, कैसे निकालते हैं टैक्सेबल इनकम, कैसे पीजीबीपी की कंप्यूटेशन होती है, हमने बहुत एग्जांपल्स किए हैं. बट ऑफिसेज में प्रैक्टिकली व्हाट इज, हाउ इज दिस अप्लाइड, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, प्रेजेंटेशन कैसे होती है, कहाँ से क्या चीजें देखनी होती है, ऑल ऑफ दिस वील डू टुडे इन दिस फ्यूचर क्लासेस. ठीक है मैम, और हम एग्जाम्पल जो लेंगे वो कॉर्पोरेट्स का लेंगे, ठीक है? बिकॉज ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ यू वुड बी handling corporates in your career, of course. Not to say that you would not be handling individuals, but of course the larger chunk of your expertise would be towards corporates, right? ठीक है. International taxation basics, key concepts including royalty and fees for technical services. मैम ये रॉयल्टी एफटीएस हमने बहुत सुना है, मतलब ये तो इंटरनेशनल टैक्स में लोग कहते हैं कि इसके बिना तो काम ही नहीं होता है. एब्सोल्युटली. रॉयल्टी एफटीएस एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. पीई एंड रॉयल्टी एफटीएस इज समथिंग दैट इफ यू आर अ इंटरनेशनल टैक्सेशन प्रोफेशनल,
you will be encountering these terms, these issues on a daily basis. On a daily basis, I can absolutely assure you that, right? Because यहाँ पे जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं, इंडिया में कस्टमर्स होते हैं उनके, दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट क्रॉप अप वेरी रेगुलरली, राइट? हम लोग, आई अंडरस्टैंड दैट not a lot of you would have experience or practical experience in international taxation, and that is why we are here to bring you that course. I'm sure that is why you guys have opted to get this course, but trust me, we'll start from the very basics and we'll climb up from there and go towards whatever is done professionally in largely the top firms of India. Okay. इंटरनेशनल टैक्स के बेसिक्स, उसमें रॉयल्टी एफटीएस करेंगे, हम पी करेंगे, उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, एसईपी। मैम पी आप एक बार ऐसे ऐसे फ्लेवर दे दो क्या होता है। अभी के लिए पी इज नथिंग बट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेजेंस दैट अ फॉरेन टैक्स पेयर हैज इन इंडिया, राइट? एक कंपनी फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कुछ स्पेसिफिक टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज कर रही है, उसने ब्रांच ऑफिस बना रखा है, उसने वेयर हाउस बना रखा है, ये चीजें आपको टेस्ट करनी पड़ेंगी अगेंस्ट सर्टन रूल्स दैट क्या इससे पीई बन जाता है कि नहीं बन जाता है, पी के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ऑल ऑफ दैट विल कवर इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है? मैम 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 2% और 6% वाली बात कर रहे हो आप? एब्सोल्युटली। 2% 6 और 6% लेवी विच either of the case, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में 2% लगता है, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में 6% लगता है। दिस इज अ लेवी विच इज ओवर एंड अबव द इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स नहीं है, ये फाइनेंस एक्ट का पार्ट था, ये फाइनेंस एक्ट में इनएक्ट हुआ था। ये इक्वलाइजेशन लेवी ये फाइनेंस एक्ट के अंडर कलेक्ट होता है। all of the rules that are in relation to equalization levy have been mentioned in finance act, right? ये income tax नहीं है, it is different, it is a different levy than income tax, right? मैम हमने ये बहुत न्यूज में भी चीजें सुनी है इस पे, तो all of it will do in the upcoming lectures. Okay, litigation process overview. हम लोग इन क्लासेस में what we'll see is we'll see the entire life cycle of from the time that you file a tax return, वो फाइनलिटी तक जो भी आपने उस टैक्स रिटर्न में टैक्स पोजीशन ली है वो एक्सेप्ट कहां तक हो सकती है। अगर रिजेक्ट हो गई है तो आपके पास एज टैक्स पेयर क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, आप लिटिगेशन किस लेवल तक जा सकते हो, किस टाइप के इश्यूज तक जा सकते हो। हम लोग पूरा लाइफ साइकिल देखेंगे। आपने रिटर्न भरा, आपका ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को केस रेफर हुआ, आपका रेगुलर एओ ने असेसमेंट की, अच्छा एओ के बाद आपने के पास दो ऑप्शंस हैं, अपील जा सकते हो आप, अपील आप दो टाइप की जा सकते हो, डीआरपी जा सकते हो, सीआईटी अपील जा सकते हो, उसके बाद आप आईटीएटी जा सकते हो, उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हो, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट से आगे नहीं जा सकते, बट ये किन किन केसेस में आप जा सकते हो, ऑफ कोर्स we'll do in the future lectures. While we are doing this litigation process overview, what we'll also see is the entire practical situation, how to handle assessments, right? Assessment के आपको notice आते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, whoever works in a CS office would sometimes have heard or may have worked on things के इस client का assessment का notice आया हुआ है, इतनी date को due है, आपको you have to respond appropriately, otherwise उसमें additions हो जाएंगी, right? तो हमने practically हम ये भी करेंगे इन क्लासेस में, दैट हाउ डू यू प्रैक्टिकली, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आंसर्स देने होते हैं, कैसे हैंडल करने होते हैं टैक्स असेसमेंट के नोटिसेस, ऑल ऑफ दैट विल डू इन द फ्यूचर क्लासेस. TDS and TCS, I know you guys have heard of it, you guys know the theory, कितने टाइप्स के TDS और TCS के प्रोविजंस हैं, you guys all know that, बट हम एक ब्रीफ रिफ्रेशर सा लेंगे एंड हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप TDS TCS से रिलेटेड आप क्या टाइप का काम आपको फॉर्म्स में मिलेगा, राइट? ओके, प्रिपेयरिंग अ लीगल सबमिशन टू बी सबमिटेड इन एपेलेट प्रोसीडिंग्स बिफोर द CIT अपील्स. आपने देखा होगा, those who you have seen it or have worked in a CA's office, you would see that जब अपील की सबमिशन जानी होती है ना, सबमिशन क्या होती है, जो मैं अपील
प्रोसेस की एक बात कर रही हूँ। वहां पे आपको जब आपने एक फॉर एग्जांपल आपने एक असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटीपीएल के पास अपील कर रखी है कि देखो ये जो एओ ने जो मेरी एडिशन की है वो गलत है। अब वो गलत क्यों है? आपकी टैक्स टेक्निकल टैक्स पोजीशन, यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट टू द सीआईटी अपील इन अ रिटन वे। आप एक सबमिशन देते हो लंबी चौड़ी कि देखो माय कंटेंशन वट एवर आई एम सेइंग इज सपोर्टेड बाय दिस लॉ, दिस केस लॉ, राइट? तो आपको आप जाके ऑफ कोर्स वील सी के आजकल अपीलेट प्रोसीडिंग्स भी कुछ लेवल पे फेसलेस हो गई हैं, और कुछ लेवल पे यू कैन डायरेक्टली मीट द कमिश्नर, बट for record purposes of course you have to make a written submission as well, right? आपके पास ऑप्शन होगा, आप जाके उसको फोन पे समझा सकते हो या आप उसको मिल के आ सकते हो, right? But what really matters is what you're writing in the submission, right? And God forbid सीआईटी अपील ने भी आपको रिलीफ नहीं दिया, जब आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे, आईटीएटी पे जाओगे, आपकी यही सबमिशंस आगे आपका ग्राउंड बनेगी कि आईटीएटी बोलेगा कि आपने क्या सीआईटी अपील के आगे आपने क्या बोला था, आप मुझे वो सबमिशंस दिखाओ, देखूं मैं उसमें कितना दम है, राइट? सो ऑल ऑफ दीज, देन आपने सीआईटी अपील को सारे फैक्ट्स बताए थे कि नहीं बताएंगे थे कि ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन पे आ पाए, राइट? सो ऑल ऑफ दिस द यू विल हैव टू एस्टैब्लिश के देखो आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, राइट? सो दिस हेल्प्स मेक योर केस इन फ्रंट ऑफ हायर अथॉरिटीज एज वेल। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे इस क्लास में, हम देखेंगे प्रैक्टिकली एक सबमिशन भी कैसे बनती है, दिखती कैसे है, बनती कैसे है, क्या क्या चीजें डालनी होती हैं हमें उस सबमिशन में, ऑल ऑफ दैट वील सी हियर। एडवाइजिंग क्लाइंट्स ऑन ट्रांजैक्शन एडवाइजरी। अब काफी बार क्लाइंट्स आएंगे, देखो मुझे इसको ये शेयर्स बेचने हैं, देखो मुझे ना फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेट्स से चेक रिपब्लिक का एक ग्रुप आया, चेक रिपब्लिक का एक मल्टीनेशनल ग्रुप है, दे वांट टू एंटर इनटू द इंडियन मार्केट। देयर इज अ ग्रुप फ्रॉम चेक रिपब्लिक, एक मल्टीनेशनल ग्रुप है, उनके पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में बिजनेसेस हैं, और द काइंड ऑफ बिजनेस दैट दे यूजुअली डू इज लेट्स से दे like set up wind turbines, let's say कोई रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, वो उनको लग रहा है कि इंडिया बहुत ही इमर्जिंग मार्केट है, सो वी वांट टू टैप इनटू इंडिया एंड लाइक अर्न प्रॉफिट्स। सो दे विल कम टू यू फॉर एडवाइस एंड आस्क यू, देखो भाई मेरे पास मुझे इन्वेस्ट करना है इंडिया में, आई थिंक दैट यू नो आई कैन अर्न वेरी हैंडसमली हियर, मुझे सजेस्ट करो कि मैं कैसे एंटर हो सकता हूँ इंडिया में, मैं क्या कंपनी बनाऊं, मैं पार्टनरशिप बनाऊं, मैं फॉर्म बनाऊं, मैं कौन से जुरिस्डिक्शन से इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे इंडिया के साथ की जो डबल टैक्सेशन ट्रीटीज हैं उसका भी बेनिफिट मिल सके, मुझे जब फाइनली जब मुझे रेगुलरली जब इंडिया से वापस मुझे हेडक्वार्टर्स में पैसा भेजना है तो कितना कम टैक्स लगेगा किन किन केसेस में, मुझे ये सब एनालिसिस करके बताओ दैट हाउ शुड माय बिजनेस मॉडल इन इंडिया लुक लाइक, राइट? So all of these from a tax perspective you will be advising to the client, right? It can of course be कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मुझे फॉर एग्जांपल शेयर्स बेचने हैं, राइट? एक चेक रिपब्लिक शेयर होल्डर, एक चेक रिपब्लिक कंपनी है जो इंडिया की एक सब्सिडरी है उसकी, उसमें शेयर होल्ड करती है, राइट? अब चेक रिपब्लिक वाले शेयर होल्डर को लेट्स से नेदरलैंड्स वाले शेयर एक बायर को शेयर्स बेचने हैं इंडियन कंपनी के, राइट? सो आपके पास क्लाइंट आएगा, बोलेगा देखो मुझे इसमें शेयर्स बेचने हैं, ये रही कंपनी की डिटेल्स, मुझे बताओ इसमें मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, राइट? हाउ कैन यू बी ऑफ असिस्टेंस टू मी टू सेव टैक्स हियर, और टेल मी के ये पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स में हाउ व्हाट विल बी माय टैक्स इंसिडेंस हियर, ऑल ऑफ दिस इज the cream of the work that you find in टॉप फर्म्स लाइक बिग फोर्स, राइट? यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको हर टाइप का काम करना पड़ेगा, आपको लिटिगेशन करना पड़ेगा, आपको रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी, आपको असेसमेंट्स करना पड़ेगा, आप सब काम करोगे, राइट? बट दिस इज वेयर the big fours actually trust you and they come for you for advice, they come to you for advice, right? So the clients come to big fours for advice. So this is something
आपको देन योर टेक्निकल्स आर ऑफ कोर्स एट प्ले, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अमेजिंग होनी चाहिए, आपकी रिटन कम्युनिकेशन बहुत अमेजिंग होनी चाहिए, बिकॉज जब आप रिपोर्ट दोगे उसको के आपका सजेशन क्या है उनके फैक्ट्स में, राइट? तो उस केस में रिपोर्ट ऐसी लिखी हुई होनी चाहिए कि आपको उनको समझ आए कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, राइट? रिपोर्ट कई केसेस में रिपोर्ट हो सकती है, कई केसेस में स्लाइड्स हो सकती हैं, पीपीटीज हो सकती हैं, राइट? सो हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेके, बिकॉज ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन एडवाइजरी इज समथिंग दैट द फैक्ट्स कैन चेंज फॉर लाइक एन नंबर ऑफ कंपनीज, राइट? हर कंपनी, हर क्लाइंट जो आपके पास आएगा वो एक डिफरेंट फैक्ट्स के साथ आ सकता है, राइट? सो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इस क्लास में which will prepare you. Okay, of course we know that transaction advisory is something which will, if you're of course amazing in technicals, if your employer knows you from maybe before that, you're capable of doing things, this is not something that you'll get on your first day of work, right? You have to establish to your seniors that I am worthy of these things, so this is like the cream work that you get, right? So ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरी जिंदगी बस रिटर्न्स भरते रह जाओगे, आप बस लिटिगेशन करते रह जाओगे, आप बस असेसमेंट्स करते रह जाओगे, राइट? दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट you should excel in, right? So this applies more of your brains. You think of creative ways how to help the client. आपको global level पे businesses समझ आते हैं, so all of this is like nothing but great for your career, right? For your personal growth, your career growth, everything. So हम कुछ examples भी देखेंगे, ठीक है? How to read and summarize case laws. मैम हमने सुना है कि टैक्स में ना पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, बहुत मटेरियल पढ़ना पड़ता है, बहुत केस लॉज पढ़ने पड़ते हैं, बहुत मेहनत तो लगती है. एब्सोल्युटली, वी डिस्कस दिस अर्लियर. टैक्स इज समवेयर जहां पे आपको रिसर्च, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट? रिसर्च से ज्यादा आपकी रीडिंग स्पीड along with the understanding of the material whatever you're reading, that should be extremely efficient, right? आपके पास जब रिसर्च करनी होती है, आपके पास जब आपको क्लाइंट को डिलीवरेबल्स देने हैं, तो यू विल नॉट ऑलवेज गेट कि आपको ऐसा नहीं दे देंगे कि 3 दिन पहले दे देंगे कि देखो 3 दिन बाद ना हम डिस्कस करेंगे, तुम रिसर्च करो, पूरा पूरा दिन लगा के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करो, इस इशू पे रिसर्च करो, हम 3 दिन बाद बात करेंगे. Sometimes people will want for you to turn around research to them in 2-3 hours. So right, so आपकी वो research skills तो अच्छी होनी चाहिए, readability बहुत fast होनी चाहिए, और आपको समझ आनी चाहिए. आपको main you will see that case laws for example would be like 200 pages, right? But आपको case law पढ़ के ये देखना पड़ेगा कि देखो मेरे लिए क्या रेलेवेंट है, राइट? यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क एज वेल. अच्छा, अगर आपने थोड़ा देख लिया कि मेरे लिए क्या रेलेवेंट है, उसके बाद आप पूरा जाके 200 पेज तो अपने सीनियर को नहीं बताओगे ना, राइट? आप अपने सीनियर को नहीं बताओगे, देखो ये मैंने 200 पेज कर लिए हैं, आओ आप पढ़ते हैं 200 पेज, मैं आपको समझाऊंगा क्या है. ऐसा तो नहीं होगा, राइट? They have delegated research to you so that it saves time for them, right? So आपको एक मीनिंगफुल वे में समराइज करनी पड़ेगी अपनी रिसर्च. आपने कोई केस लॉ पढ़ा है, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है आपने, राइट? यू विल हैव टू टेक योर रिसर्च टू योर सीनियर्स. तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? समराइज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, आप केस लॉ पढ़ रहे हो तो आपको एक केस लॉ समराइज करना पड़ेगा. लेट्स से 100 पेजेस का कोई केस लॉ है, राइट? तो उसमें से रेलेवेंट चीजें कहाँ हैं, क्या बोल रहा है कोर्ट, क्या फैक्ट्स थे इस केस में, all of that you'll have to like maybe bring it out, either you mark or make notes on the PDF itself, or you take it out on your notepad, you make a new word doc, or you do whatever XYZ things, right? तो बेसिकली आपको समराइज करना पड़ेगा कि देखो इसमें से टेकअवेज क्या थे, राइट? तो दिस इज ऑल्सो अ स्किल दैट यू नीड टू मास्टर इन कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स स्पेशली, ठीक है? वी लर्न टू डू दैट एज वेल. हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे केस लॉ के, और हम ट्राई करेंगे क्लास में पढ़ने का, और उसके बाद फिर उसको समराइज करने का, ठीक है मैम? Computation of taxable income and filling up return form utility for individuals. We know the course is largely catered towards corporate tax, but
for the sake of completeness, we'll also see the individual taxation as well, right? हम usually कुछ एक overview basis पे लेंगे taxable income of an individual we calculated, right? उसकी salary income होती है, उसकी house property income होती है, उसकी capital gain income हो सकती है shares बेच के, all of that we'll see on an overview basis in this class. Another thing what we'll see is also lastly what we'll also see is ट्रस्ट के चैरिटेबल ट्रस्ट रिलीजियस ट्रस्ट उनके टैक्सेशन प्रोविजंस क्या है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में we'll see that as well for a complete holistic picture, right? ओके गाइस, तो हमने आज ब्रीफ में एक बहुत ओवरव्यू लिया कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का। हमने देखा कि क्या टाइप का करियर एंटेल करता है इसमें, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, हम लोग क्या क्या सीखेंगे इस कोर्स में। आई होप यू आर एज एक्साइटेड एज आई एम टू help share my knowledge, my experiences, whatever I have in my journey. I hope by the end of this course, you are inclined towards making a full-fledged career in this field. I hope you enjoy all of these upcoming sessions. See you in the next session.